I guess almost everyone has joined, and probably a few more will join in some time. So, welcome back, guys, to the part two of Logic Lounge. And before we jump into the discussion about the contest questions, I would like to clear a few questions which many of you had asked on WhatsApp. Firstly, how long will this series continue? As of now, we have just planned it for the summer break, but we might continue it after that, depending on your guys' response and activeness to the series. Apart from that, secondly, few of you guys wanted the session to be conducted just after the contest. I understand your will, but it is really tough to conduct the session just after the contest because not everyone would be able to join because giving the contest is itself tiresome. So really sorry for that. Apart from all this, do you guys have any doubts regarding the series or anything that you guys would want us to implement in this series? Apart from uploading the uh, meet on YouTube or the codes on the GitHub repo, and or maybe in general about ACM or any events you guys want us to conduct in the upcoming year. We are free for discussion for the remaining 1 minute. Anyone? Via some more online, some more offline contests in the colleges when the colleges will open. You mean to say contests like CP ones or like Codezilla ones or Fool's Gold type? Contests related to DSA in which problem solving is asked, any types like Codzilla or single pairing, anything of such kind. Okay. Actually, we are planning to do so. We are on our way to continue a thing which used to occur in the past uh, for the ACM events, which was known as the Coder of the Month thing. We will integrate it with the CQM and maybe we can conduct the CQM as in an offline mode also. But yes, we'll think about it. Great to have your opinion. Anyone else? I guess no one has any other doubt, so we should begin now. No? Okay. Is my screen visible to everyone? Okay. So the first question of the contest was the A1, and we will start right now. So basically, the first question was my first sorting problem. Here we had two integers given to us in the format of x and y, and we had to calculate the minimum of x and y followed by the maximum of x and y. And then we had to print the minimum first and followed by the maximum. But here we need to notice one thing. Maybe a few of you might have caused this mistake or something like that. Like you had just printed min and then max, but there was a space between that. So like it's a just of a caution. So it was a very easy question. So we have x and we have y. Here you can see in the input there were 10 test cases in the first uh, test one, and there were 1 and 9. So here in 1 and 9 the minimum of 1 and 9 is 1 and followed by 9, and here it was 8 and 4 followed by 4 and 8. So it was a really easy question. I don't think so anyone would have any problem in that, but still here's the code for it. So firstly, we have the header file followed by the, we are declaring integer t, which is the number of test cases, followed by the input of t, and then we are running a loop so as to get the input of all the test cases. And we have declared a and we have declared b, followed by the input of a and b. And then we have the first comparison. If a is greater than b, so it means a is max,
and B is the minimum. So first we need to print the minimum and followed by the maximum. So we'll first print B followed by A, and else if there is the other case where B is max, so A will be the minimum. So we will first print A followed by the B, and that was the question. I guess no one has any problem in that. If you have, please ask. Is everyone clear to the question? Okay, I guess the question is done. Ritabash, you can now start. Okay, so it's the problem number B. Basically, the question statement is that you are given a string S consisting of lowercase English letters. Rearrange the characters of S to form a new string R that is not equal to S or report that it's impossible. तो बेसिकली हम लोग को एक स्ट्रिंग गिवन है बेसिकली एस ओके सो एक स्ट्रिंग गिवन है एस और हम लोग को बोलना है कि हम लोग अगर रीअरेंज करें स्ट्रिंग को तो अगर कोई मतलब रीअरेंज करके अगर कोई नया स्ट्रिंग बनाए आर जो बेसिकली इक्वल ना हो एस के तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं ओके सो एक तो होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच श्योरली कि तुम हर एक पॉसिबल केस देख लो कि लाइक आई का वैल्यू जीरो से लेके तुम एन माइनस वन तक चले जाओ और एक होगा कि जे इजिकल टू जीरो से एन माइनस वन तक चले जाओ और सबको स्वैप कर लो मतलब हर एक पोजीशन को स्वैप करके देख लो कि तुम्हारा स्ट्रिंग डिफरेंट है नहीं लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्रूट फोर्स अप्रोच है मतलब चल जाएगा क्योंकि तुम्हारा एन का वैल्यू आएगा मतलब तुम्हारा स्ट्रिंग का साइज 10 है वो चल जाएगा तो और एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है कोई बोलेगा कोई बोल मतलब बोलना चाहेगा क्या ऑब्जर्वेशन है अच्छा एनीवन एनीवन तुम बोल सकते हो अपना इंट्यूशन तुमने जो अगर किया हुआ कॉन्टेस्ट में ओके तो देखो तुमको बेसिकली ये दिख रहा है कि अगर तुम्हारा सारा एलिमेंट सेम हो तभी तुम्हारा बेसिकली आंसर नो आएगा तभी मतलब ऐसा पॉसिबल है कि तुम्हारा मतलब तुम अगर रीअरेंज करो और स्ट्रिंग का मतलब क्या बोलते हैं स्ट्रिंग तुम्हारा मतलब डिफरेंट ना आए फॉर एग्जांपल तुम्हारा यहाँ पे कोड फोर्सेस है अगर तुम बेसिकली लूप चला लो मतलब फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन ओके लेट्स सी तुम्हारा कोड फोर्सेस है ठीक है तुम कोड ही मान लो यहाँ पे तुम्हारे सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर सेम नहीं है श्योरली यहाँ पे अगर तुम्हारे सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर सेम नहीं है तुम लूप चलाओगे और तुम चेक करोगे सी और ओ सेम है नहीं अगर नहीं है तुम बस उसको कर दो तुम रिप्लेस और बस ये तुम्हारा मतलब तुम्हारा ऐसा स्ट्रिंग तुम जनरेट कर दिए और आंसर भी ऐसा आ गया लेकिन अगर तुम ऑन द कॉन्ट्रारी अगर तुम ऐसा करो कि लाइक तुम्हारे पास ए है और तुम करते रहे बेसिकली ट्रैवल्स करते रहे और लाइक यहाँ पे तुम गए कि सेम नहीं है तो तुम रिप्लेस नहीं करोगे सेम नहीं है रिप्लेस नहीं करोगे अगर तुम एक फ्लैग बना लेना फ्लैग का वैल्यू तुम दे देना लाइक जीरो और अगर तुम्हारा क्या बोलते इस मतलब कहीं पे तुम्हारा डिफरेंट है तो फ्लैग का वैल्यू वन कर देना और वहाँ पे तुम उस स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देना उस पोजीशन में और अगर तुम्हारा क्या बोलते फ्लैग का वैल्यू तो आफ्टर द लूप एंड ऑफ द लूप तुम्हारा अगर फ्लैग का वैल्यू जीरो ही रहा इसका मतलब कोई स्वैपिंग नहीं हुआ इसका मतलब श्योरली सारे एलिमेंट सेम है और अगर सारे एलिमेंट सेम है तो श्योरली इट्स नो यू कांट कोड देख लोगे तो कोड यहाँ पे स्ट्रिंग ले लोगे एक और तुम इसको क्या बोलते कर लोगे मतलब एक बार ट्रैवल्स कर लोगे और यहाँ पे तुम चेक करते रहोगे बार बार कि लाइक इक्वल टू नॉट इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू है नहीं अगर नॉट इक्वल टू है तो बस यस कर दोगे और स्वैप कर दोगे और इसको प्रिंट कर दोगे और नहीं तो नो हो जाएगा आंसर ठीक है फिर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन किसी को डाउट है कुछ किसी को डाउट है कुछ ठीक है फिर विशाल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन दिख रही है मेरी चलो प्रॉब्लम सी पे आते हैं
तो देखो बेसिकली सी क्या प्रॉब्लम था, तुम्हें 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर दिए हुए रहेंगे ए बी सी डी 1 और 12 के बीच में। अब क्या होगा, ए और बी के बीच में एक लाइन बनेगा, सी और डी के बीच में एक लाइन बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो ए 2 था और बी 9 था, तो 2 और 9 के बीच में एक लाइन बना। सी मान लो 6 था और डी तुम्हारा 10 था, तो सी और डी के बीच में एक लाइन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन आई गेस क्लियर होगा। हाँ, अब देखो एक बात ये समझो कि जो तुम्हारा ए बी सी डी है, ये चारों डिस्टिंक्ट है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑलवेज 2 पॉइंट के बीच में लाइन बनेगा ही, और कोई भी 2 लाइन ओवरलैपिंग नहीं होगा। अब जैसे ए बी सी डी, ए बी और सी डी ये चारों डिस्टिंक्ट है, तो ए बी के बीच में जो लाइन बनेगा और सी और डी के बीच में जो लाइन बनेगा वो हमेशा डिफरेंट होगा, सिंस ए बी सी डी ऑल डिस्टिंक्ट्स। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग लाइन का मतलब कॉन्सेप्ट या फिर ओवरलैपिंग लाइन वाला केस हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। और दूसरा बात, ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट है, तो इससे ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट है, यानी कि देयर विल बी अ लाइन। ऐसा नहीं है ए और बी दोनों सेम है तो देयर विल बी ओनली अ पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला चीज समझ में आ गया कि ए बी सी डी डिस्टिंक्ट से हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिराइव किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब समझ लो ए दिया हुआ है 2 और बी दिया हुआ है 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लाइन बना दिए। अब हमको बताओ ऐसा कौन सा लाइन होगा जो कि इससे इंटरसेक्ट नहीं करे। इस हाफ में जितना लाइन हो सकता है ऐसे 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 सारा लाइन, एंड इस हाफ में जितना लाइन हो सकता है ऐसे 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 सारा लाइन। तो बेसिकली हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हमको एक ऐसा लाइन चाहिए जो कि 2 और 8 से बना हुआ लाइन को इंटरसेक्ट ना करे, तो मेरा दोनों कोऑर्डिनेट्स यानी कि दोनों सी और डी दोनों या तो इस हाफ में होना चाहिए, या तो सी और डी दोनों इस वाले पूरे हाफ में होना चाहिए, या तो सी और डी इस वाले पूरे हाफ में होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब अगर दोनों मेरे को सी और डी से बनने वाला लाइन इंटरसेक्ट होना चाहिए, वो चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, या तो सी 2 और 8 के बीच में हो एंड एट द सेम टाइम डी यहाँ पे हो, या तो डी 2 और 8 के बीच में हो और सी इस वाले हाफ में हो, ठीक है। ये क्लियर है कि अब लाइन कैसे बनेगा, लाइन कब नहीं बनेगा। और किसी को डाउट है इस पार्ट में कि जो अभी तक हम एक्सप्लेन किए समझ में आया सबको? तो एक बार मेरे को, ठीक है चलो, आई गेस ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया। एबीसीडी डिस्टिंग भी मैंने समझा दिया। अब देखो, तो अब इसका आता है कि अब इसमें लॉजिक क्या करेंगे। तो बेसिकली अब मेरे को दिया हुआ रहेगा, कोडी में आ जाते चलो। अब यहाँ मैंने टेस्ट केस के लिए टी इनपुट ले लिया, ए इनपुट ले लिया, बी इनपुट ले लिया, सी इनपुट ले लिया, डी इनपुट ले लिया। अब देखो ए और बी में हमको ये तो नहीं पता है कि हमेशा ए छोटा होगा कि बी छोटा होगा, तो मैंने मिनिमम निकाल लिया आउट ऑफ ए एंड बी और मैक्सिमम निकाल लिया ए और बी। अब एक जो लाइन है वो ए और बी के बीच में बनेगी। तो मैंने क्या किया है कि यस के लिए सारा पॉसिबल केस निकाल दिया, और अगर इस केस में किसी में फॉलो नहीं किया तो ऑब्वियसली उसका आंसर नो होगा। तो सबसे पहले मैंने देख लिया सी, तो यस क्या होना चाहिए कि जो सी है ग्रेटर देन मिन होना चाहिए एंड लेस देन मैक्स होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर ये वाले कंडीशन लगाई है, ठीक है। आई गेस ये वाली चीज समझ में आ रही होगी। अच्छा, मेरा स्क्रीन विजिबल था क्या जब मैं कोड दिखा रहा था? ठीक, तो ये होना चाहिए एट द सेम टाइम डी या तो मिन से छोटा होना चाहिए या तो डी ग्रेटर देन मैक्स होना चाहिए, यानी कि वो वाले अपर हाफ में होना चाहिए जो मैंने समझाया था। यानी कि अगर सी मेरा मिन और मैक्स के बीच में तो डी मेरा इस हाफ में होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम अगर डी मेरा इस हाफ में तो सी इस हाफ में होना चाहिए। तो इन दोनों केस में यस होगा, अदरवाइज द आंसर विल बी नो। देयरफॉर यस इस केस में होगा, यस इस केस में होगा, एल्स इट वुड बी नो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इक्वल टू इसलिए नहीं लिया है क्योंकि दिया हुआ है कि ए बी सी डी आर ऑल डिस्टिंक्ट। तो आई गेस ये क्लियर होगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई डाउट या कुछ समझ में नहीं आया हो? आई गेस थम्स अप। हाँ हाँ बोलो। बोलो क्या नाम था? पीयूष, सारा डिस्टिंक्ट होना चाहिए। हाँ, आई गेस आई हैव टोल्ड दैट कि सब डिस्टिंक्ट होना चाहिए। एंड हाँ, किसी को कोई डाउट था? कोई हैंड रेस किया था आई गेस? ओके, चलो बोल नहीं रहे हो तो मान लेते कि गलती से हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। थम्स अप कर दो एक बार सारे। ठीक है चलो। हाँ, कोई हैंड रेस किया आई गेस, जो भी क्या। अच्छा ठीक है चलो, फिर से गलती से ही हुआ होगा।
ठीक है चलो, अब डी भी हम ही एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है। अब देखो डी में क्या है कि हम लोग को एक बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है। बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि केवल इसमें 0 और 1 रहेंगे। ठीक है, अब इसमें तुमको क्या करना है कि इसमें तुमको कट्स करके इस स्ट्रिंग को पीसेस में डिवाइड करना है और इन पीसेस को रीअरेंज करना है ताकि तुम्हारा एक सॉर्टेड बाइनरी स्ट्रिंग बने। अब सॉर्टेड बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब क्या है, वो स्ट्रिंग में जितने भी जीरो लगातार है और फॉलोड बाय उस स्ट्रिंग में जितने भी 1 हो। लाइक इस केस में देखो यहाँ पे 1 1 0 1 0 दिया था, तो यहाँ एक कट किया, यहाँ पे एक कट किया। अब ये हमेशा याद रखना कि जैसे तुमको यहाँ पे प्रिंट करना है नंबर ऑफ पीसेस, द नंबर ऑफ पीसेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ कट्स प्लस 1। अगर तुम समझ लो एक स्ट्रिंग में एक कट डालोगे तो वो कितना होगा, 2 में डिवाइड होगा, यानी कि नंबर ऑफ पीसेस विल बी कट प्लस 1। तो अब यहाँ पर 2 कट डाले यानी कि इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पीसेस। ठीक है, मेरे को इसको सॉर्टेड बाइनरी स्ट्रिंग बनाना था, तो देखो अब यहाँ पर ये सॉर्टेड बाइनरी स्ट्रिंग बन गया। ठीक है चलो, ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं कि इंट्यूशन। अब समझ लो एक बाइनरी स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, अब बाइनरी स्ट्रिंग कुछ ऐसे है, यहाँ पे कोई नंबर है, कोई नंबर है, कोई नंबर है, अगेन 0 0 0 0 एंड अगेन 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 नंबर। तो अब ये देखो अगर लगातार इधर जीरोस आ रहे हैं तो मेरे को कट मारने का जरूरत है क्या? कहीं नहीं। अगर लगातार जीरोस आ रहे हैं तो मेरे को क्या जरूरत है, मेरा तो ऑलरेडी ये सॉर्टेड ही है। ठीक है, 0 0 0 कहीं भी 1 1 हुआ, ये पूरा हम उठाएंगे 0 को और उसके आगे रख देंगे जहां भी 1 1 1 हुआ। तो यहाँ तो मेरे को कट मारने का कोई जरूरत नहीं है। अब सिमिलरली अब समझ लो अगर कुछ भी पैटर्न होता है इसमें 1 ऐसे 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 रिपीट आ रहा। ठीक है, तो ये 1 को मेरे को कहीं कट मारने का जरूरत है क्या? नहीं। इसको एज ओल उठा के हम जहां भी 0 खत्म हो रहा होगा उसके एंड में प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ना 0 वाला पैटर्न में कट मारने की जरूरत है, ना ये लगातार 1 वाले पैटर्न में कट मारने की जरूरत है। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये इजी भी था। ठीक है चलो नेक्स्ट के साथ आता है। अब समझ लो कि ऐसा पैटर्न आता है कि 1 0 समथिंग 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 नंबर्स है एंड देन समथिंग 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 नंबर्स है। अब यहाँ पे पैटर्न आया 1 0। अब यहाँ पे क्या स्प्लिट मारने की जरूरत है? हाँ, यहाँ पे स्प्लिट मारने की जरूरत है। अगर तुम इनको स्प्लिट नहीं मारोगे और इसको एज अ होल रखोगे तो ये सॉर्टेड होगा क्या? हमेशा 0 शुड कम बिफोर 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्प्लिट मारने की जरूरत है। तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर होता है कि जब तुम एक एक करके डिजिट्स पे जाओगे तो जहां भी तुमको 1 0 ऐसा पैटर्न दिखेगा वहां पे तुम एक स्प्लिट मारोगे। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर होता है। अब एक और पैटर्न यहाँ बन रहा है। अब ये पैटर्न हो सकता है 0 1। ठीक है, अब अगर इनिशियली तुम देखो तो तुमको लगेगा कि यहाँ स्प्लिट मारने का क्या जरूरत है, 0 जो है वो 1 के पहले आ रहा है, तो ये 0 1 को एज इट इज रख देंगे और फिर जितना भी जीरोस होगा उसको ऐसे 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 रख देंगे और जितना भी 1 होगा 1 होगा 1 होगा इसको ऐसे रख देंगे। तो एज इट इज अभी देखने में तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा। अब चलो हम इसको एक टेस्ट केस से समझाते हैं कि इसमें ये वाले में क्या प्रॉब्लम अगर तुम 0 1 पे कट नहीं करते हो। ठीक है, तो लेट मी टेक अ टेस्ट केस। समझ लो ऐसा है 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1। अब देखो यहाँ पर 0 आ रहा है 0 आ रहा है 0 आ रहा है, लगातार आ रहा है, कोई कट मारने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 0 1। तो समझ लो एट फर्स्ट हम लोग 0 1 पे कट नहीं मारते, क्या जरूरत है, 0 1 पे कट नहीं मारते। अब जो भी 0 होगा यहाँ रख देंगे और जो 1 होगा यहाँ रख देंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 1 0 आया। ठीक है, तो 1 0 आया तो ऑब्वियसली यहाँ एक कट मारने का जरूरत है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग सोचे थे उस हिसाब से यहाँ कट मार दिए। अब बताओ ये जो तुम्हारे को 2 पार्ट मिल गया है, ठीक है, ये एक पार्ट मिल गया, ये एक पार्ट मिल गया। अब ये पार्ट को कैसे रीअरेंज करोगे कि तुम्हारा ये सॉर्टेड हो जाए? अगर तुम ये पार्ट को पहले रख दोगे तो फिर फॉलोड बाय 0 1 1 1 हो जाएगा, या फिर ये पार्ट को पहले रख दोगे 0 0 0 1 1 1 1 देन अगेन 0 0 1 1 हो जाएगा। तो यानी कि अभी भी तुमको एक सॉर्टेड बाइनरी स्ट्रिंग नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर तुम देखो ये 0 0 जहां खत्म हो रहा है यहाँ पर अगर एक स्प्लिट मार दो तो अब इसको कैसे रख सकते हैं, ये वाला 0 ऐसे आ जाएगा, ये वाला एज इट इज ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा। तो कुल मिला के हमको ये समझ में आया कि जब ऐसा है 1 0 1 0 है तब तो मेरे को स्प्लिट मानना ही है, और 0 1 वाला पैटर्न है
तो अगर जब हम स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर रहे हैं, पहला 0 1 वाला पैटर्न को हम नहीं छेड़ेंगे, जैसे यहाँ पे देखो पहला 0 1 वाला पैटर्न को एज इट इज रहने देंगे, लेकिन उसके बाद जितना भी 0 1 वाला पैटर्न आएगा वो हर जगह हम स्प्लिट मारेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 एक बार 0 1 साथ हो गया, तो अब या तो केवल तुमको ग्रुप ऑफ ऑल जीरोस चाहिए टू बी प्लेस्ड बिफोर ऑल द जीरोस दैट हैव बीन हियर, एंड या तो तुमको सारा ग्रुप ऑफ 1 चाहिए टू बी प्लेस्ड आफ्टर दिस वंस। ठीक है, यू कांट हैव अगेन अ रिपीटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 0 1 जैसे कि इस केस में था। तो एक बार 0 1 अलाउ कर देंगे, उसके बाद जितना बार भी 0 1 आया तो उधर भी एक कट मारते जाएंगे। ठीक है, ये वाला चीज कितना जन को समझ में आया, एक बार थम्स अप कर दो, या नहीं भी समझ में आया तो डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि मेन ट्रिक इसमें यही था जो मिस कर सकते थे। पहला 3 केस तो एवरीवन विल से। कोई डाउट? अब कोई डाउट है तो किसी को पूछो इसमें, अदरवाइज आई विल शो द कोड। कोई डाउट नहीं है? चलो लेट मी अज्यूम कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो कोड दिखा देता हूँ। Wait guys, where's the code? हाँ देखो, तो अब यहाँ पर कोड देखो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो मेरे को गिवन बाइनरी स्ट्रिंग है इसमें मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ। अब मेरे को अगर पहला कैरेक्टर 1 आए और उसके बाद का कैरेक्टर 0 आए, ठीक है, तो मेरे को कट मारनी है, तो CNT++। अब यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने क्या कर दिया कि इनिशियली मैंने एक k वेरिएबल लिया है जिसका वैल्यू 0 रखा है। अब क्या हुआ कि जैसे ही पहला आया, पहला अगर ये वाला कैरेक्टर 0 है, नेक्स्ट कैरेक्टर 1 है, यानी कि 0 1 वाला कॉम्बिनेशन आया, तो मैंने k का वैल्यू 1 कर दिया, अभी कोई भी काउंट प्लस नहीं किया। अब अगली बार जब भी 0 1 एक साथ आएगा और k का वैल्यू 1 है, k का वैल्यू 1 है यानी कि मेरे को पता है कि प्रीवियसली स्ट्रिंग में 0 1 आ चुके हैं, तो मैं फिर काउंट का वैल्यू बढ़ाए जा रहा हूँ। और लास्ट में मेरे को सिंस नंबर ऑफ ये पीसेस प्रिंट करने थे, तो नंबर ऑफ कट्स +1, जो मैंने समझा दिया था, नंबर ऑफ कट्स +1 नंबर ऑफ पीसेस कैसे होते हैं। ठीक है, तो कोड तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब कोई डाउट फाइनल, एनीथिंग related to this question? और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n है, since I am traversing the whole binary string। एंड जो मैंने पिछला क्वेश्चन समझाया था उसमें तो आई गेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब मैंने इफ एल्स यूज किए थे, तो उसमें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करने का मतलब नहीं है। इट वाज अ लॉजिकल क्वेश्चन, प्रीवियस वाला मैथ का क्वेश्चन था। तो आई गेस कोई डाउट है तो पूछ लो, C और D दोनों में किसी में भी डाउट है तो पूछ लो। ओके चलो, कोई पूछ नहीं रहा तो लेट मी अज्यूम सबको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो बी के साथ प्रोसीड करेंगे। सुकम कंटिन्यू कर ले। हेलो हेलो, ओके, वॉइस आ रही है सही वॉल्यूम पे? हाँ भैया। ठीक है, ओके ओके, फाइन। सो वी आर हियर विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बी फाइंड द कार। ओके, सो तुम में से कौन कौन पहले से क्वेश्चन पढ़ के आया है, मतलब लाइक पता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करने के लिए क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ? जो पढ़ के आए एक बार हैंड रेस कर लो कि हाँ क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ के आए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके, बस इतने ही लोग? ठीक है, ओके, 10 to 50, ये मीन्स मेरे को क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो सुनो, let me bring my calculator. So क्वेश्चन इज बेसिकली सेइंग कि तुमको ना एक रोड है, ठीक है, ऐसा, और तुमको उसमें ना कुछ समथिंग यू से चेक पॉइंट्स ना, लाइक कुछ ऐसा लैंडमार्क कह लो, चाहे फिर बोर्ड कह लो, चाहे चेक पॉइंट्स ही कह लो, कि हाँ यहाँ पे तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लाइक सपोज मान लो ये गिवन रोड है और रोड की लेंथ मान लो n है, ठीक है ना। सो डैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारा 0 और यहाँ पे होगा तुम्हारा कहीं पे n। ओके, नाउ क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको k चेक पॉइंट्स दिए रहेंगे ना, k ही है ना, ओके, हाँ ठीक है, k है, ठीक है। और
जो के चेक पॉइंट्स है ना, उसमें जो तुमको डाटा दिया हुआ है ना, वो कुछ इस प्रकार से, लाइक मान लो कि तुमको इस चेक पॉइंट पे दिया हुआ है कि इस चेक पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है और यहाँ पे आने का जो टाइम लगा है ना वो कितना है। स्क्रीन विजिबल और वॉइस आ रही है ना पूरी पूरी? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो तुमको हर एक चेक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे है तो तुमको यहाँ पे एक लाइक मान लो AI करके दिया हुआ है, ठीक है ना। ये बता रहे कि ये 0 से यहाँ पे मान लो अगर AI की वैल्यू 10 है, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ से जो इनिशियल है ना, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लो 10 किलोमीटर मान लो, या फिर 10 यूनिट की है, ओके। और यहाँ पे आने का जो टाइम है वो BI है। दैट मीन्स कि लाइक अगर BI की वैल्यू मान लो 2 है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा है वो 2 यूनिट का टाइम है, ठीक है। दैट मीन्स कि इस चेक पॉइंट पे जो डाटा दिया वो कुछ ऐसे है कि 10,2 है और 10 यूनिट डिस्टेंस है इसकी यहाँ से यहाँ तक की, और तुम्हारा जो ये 2 है ये तुम्हारा वो है लाइक यहाँ से आने का टाइम है, ओके। देन तुमको आगे का भी ऐसे ही दिया हुआ कि यहाँ पे जो मान लो डिस्टेंस आएगी मान लो 15 है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 15 है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक के आने का टाइम ऑफ कोर्स लाइक 2 से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, तो 2 से बड़ा मान लो 3 है। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 है और यहाँ से आने का जो टाइम है वो 3 मिनट्स है, ओके। ऐसे ऐसे करके तुमको सारे यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, टोटल के पॉइंट्स हैं, तो तुमको यहाँ पे के पॉइंट्स का ना ऐसे करके डाटा दिया हुआ है कि लाइक हर एक पॉइंट पे बताया गया है, कुछ कुछ डाटा गिवन है। और सिमिलरली एन पे भी तुम्हारा वही होगा कि लाइक 0 से लेके एन आने, मान लो एन की वैल्यू 10 है, एन की वैल्यू मान लो 20 है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे तुमको दिया रहेगा 20, दैट मीन्स कि लाइक लास्ट पॉइंट है, और यहाँ पे पहुँचने की टाइम कितना लगेगा, सपोज कर लो 15 मिनट, तो टाइम और ये तुमको दिया रहेगा। अभी तक समझ में आया ना क्वेश्चन, मतलब क्या क्या गिवन है। लाइक एक रोड रहेगी, उसकी लेंथ है मान लो n, ठीक है, और तुमको उसमें के चेक पॉइंट्स दिए रहेंगे कि लाइक के पॉइंट्स है, और हर एक पॉइंट पे तुमको बताया गया है कि जो बिगिनिंग है वहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है और वहाँ तक आने का जो टाइम लगा है वो कितना है, ठीक है। इतना समझ में आया? अभी केवल क्वेश्चन ही एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है, ओके, बढ़िया। सो अब देखो, अब तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा एक डिस्टेंस d, ओके। अब तुमको इस डिस्टेंस d के लिए बताना है कि टाइम कितना लगेगा यहाँ पे पहुँचने का ना, ठीक है। और सिंस क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है कि बिटवीन एनी टू एडजेसेंट साइंस द कार ट्रेवल्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, ओके। दैट मीन्स कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में जो कार की स्पीड रहेगी ना, एडजेसेंट पॉइंट्स हैं, लाइक ऐसा नहीं कि एक पॉइंट यहाँ को उठा लिए एक पॉइंट यहाँ को उठा लिए, तो ये वैलिड नहीं है ना। इसने बोला है एनी टू एडजेसेंट पॉइंट ना, एडजेसेंट साइंस, तो इन दोनों के बीच की जो स्पीड रहेगी ना वो कांस्टेंट रहेगी। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला मतलब चलाया जा सकता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। दैट मीन्स कि ये इस छोटे से इंटरवल पे वैलिड रहेगा, ठीक है। सो बस यही क्वेश्चन है, और लाइक तुमको एक 3 टेस्ट केसेस दिए जाएंगे, एन, के और क्यू रहेगा। एन है वो तुम्हारी रोड की लेंथ कितनी है, और के दिया रहेगा कितने चेक पॉइंट्स हैं, और क्यू क्वेरीज देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद के इंटीजर्स देगा AI। एक सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड, okay, हाँ। So AI and BI will be given, and then हर एक क्यू क्वेरीज के अंदर में तुमको एक डिस्टेंस d नाम से एक पैरामीटर दिया रहेगा ना। लाइक इसी में देख लोगे तो कुछ ऐसा है, लाइक 10 रोड की लेंथ है, दिस इज 1, दैट मीन्स कि एक ही दिया रहेगा, एक ही चेक पॉइंट है वो 10 पे ही है, और उसके बाद तुमको 3 क्वेरीज है ना, ऐसे ऐसे करके उसका पूरा डाटा इनपुट है, ठीक है। तो लाइक इसमें जो टेस्ट केसेस हैं इसमें से कुछ खास तुमको निकल नहीं पाएगा ना, क्योंकि सारे ये आइदर एज टेस्ट केस हैं या फिर बहुत छोटे छोटे हैं। सो मैं तुमको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना मेरी से? ठीक है, आ रही है, ओके, परफेक्ट। सो इसी में ले लेते हैं, जैसे मान लो कि ठीक है, मान लो एक रोड है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है ना। यहाँ पे तुमको n है, तो यहाँ पे तुम्हारा 0 है, और तुमको कुछ मान लो सपोज करो 3 चेक पॉइंट्स है, ठीक है। एक चेक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है ना। एकदम बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो सब लोग जेई में ऑलरेडी करके आ रहे हैं, ठीक है। मान लो तुमको 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 यूनिट, और यहाँ पे जो आने का टाइम लगेगा वो 5 है, मतलब 5 यूनिट ऑफ टाइम। मान लो यहाँ तक की डिस्टेंस तुम्हारी 15 हो गई,
और यहाँ तक आने का जो टाइम लगेगा वो मान लो 7 यूनिट है, और यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो तुम्हारे पास 25 है, और यहाँ तक आने का जो टाइम लगेगा वो मान लो 12 है, ठीक है। और ये जो n की वैल्यू दी हुई है ये है तुम्हारा मान लो 40, ओके। एंड यहाँ तक आने का जो तुम्हारा टाइम लगेगा वो फॉर सपोज मान लो 15, ओके। ऐसा कुछ दिया रहेगा तुमको इनपुट में, ठीक है। तो और तुमसे मान लो क्यू इनपुट में रहेगा, मतलब कि तुमको क्यू क्वेरीज का आंसर करना है। मान लो मैं तुमसे बोलूँगा कि 0 पे नहीं, मान लो चलो यहीं पे मान लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के लिए टाइम कितना लगा होगा तो तुम डायरेक्ट देख के बता दोगे कि हाँ 7 यूनिट ऑफ टाइम लगा होगा ना। सो सपोज मान लो तुमको इनपुट में मान लो आ गया 15, कि मेरे को बता दो कि 15 यूनिट ऑफ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा ना। तो वो तुम लोग क्या बोलोगे कि 15 यहाँ पे है, 7 ऑलरेडी मेरे पास है, तो आंसर आ जाएगा 15 का 7, कि 15 यूनिट ऑफ डिस्टेंस कवर करने के लिए 7 यूनिट ऑफ टाइम लगा होगा ना। ये चीज़ समझ में आ रही है ना? लाइक एकदम बेसिक है ये, आ रहा है ना? ठीक है, बढ़िया। अब मान लो मैं तुमसे बोलूँगा कि 40 यूनिट, दैट मीन्स कि तुम्हारा n के बराबर, इसको इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना लगा होगा टाइम, तो तुम डायरेक्ट आउटपुट कर दोगे 15 की, देखो 15 यूनिट ऑफ टाइम लगा होगा, ओके। और मान लो इनपुट में 0 आ जाता है तो आंसर विल बी अगेन 0 कॉज, मतलब 0 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 0 ही टाइम लगता है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन में तुमसे बोला हुआ है ना कि वो तुमको मान लो कि Q एक इनपुट देगा, ठीक है। और Q के बाद मान लो Q की वैल्यू 5 है, तो तुमको आंसर करना है 5 क्वेरीज के लिए, ठीक है। और हर एक क्वेरी में ना तुमको एक डिस्टेंस भी गिवन रहेगा। क्या हो गया? ओके, पूछो क्या हुआ? अविनाश पूछो। अविनाश, ठीक है, ओके, डर गया, ठीक है। मान लो डी, सपोज मान लो मैं तुमसे बोल दिया कि यार मान लो मैं तुमको दिया 12, तो बताओ मेरे को 12 यूनिट ऑफ डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो 0 से 10 तो मेरे को पता है कि 5 यूनिट ऑफ टाइम लगने ही वाला है, और यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगी। सो 12 डिस्टेंस मतलब मान लो कहीं यहाँ पे होगा, तो तुमको बस ये टाइम निकालना है ना। टेक्निकली तुमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है, लाइक 10 से 15 कितना हो गया इंटरमीडिएट डिस्टेंस, 5 हो गया। 5 से 7 कितना हो गया, 2 हो गया। दैट मीन्स कि इस चेक पॉइंट से लेकर के इस चेक पॉइंट के बीच में कार 5 यूनिट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल की है इन अ टाइम ऑफ 2 यूनिट ना। दैट मीन्स कि इसकी स्पीड कितनी होगी, 2.5 यूनिट पर सेकेंड ना। अब तुमको यहाँ पे जो केवल 2 यूनिट ट्रैवल करना है, तो तुम लोग सिंपल यूनिटरी मेथड का यूज़ करके यहाँ पे निकालोगे ना। मतलब एकदम सिंपल सी चीज़ है, लाइक 100 रुपये में तुमको 10 एप्पल मिल रहे हैं, तो 10 रुपये का एक एप्पल हुआ ना। 100 रुपये में 10 एप्पल, तो 10 रुपये का एक एप्पल ना। एकदम सिंपल, लाइक बेसिक यूनिटरी मेथड है ना। आया नहीं समझ? ठीक है, बढ़िया। या फिर तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 5 है, और हाँ डिस्टेंस 5 है और जो टाइम लगा है वो 2 लगा है ना। दैट मीन्स कि एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करने का तुमको कितना लगा होगा, 2/5। तो तुमको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 12। बट तुम 10 ऑलरेडी यहाँ पे बिलो पॉइंट है ना, तो तुमको यहाँ से यहाँ तो 2 ही करना होगा ना एक्स्ट्रा। तो बस तुम इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा लाइक 4/5 विच इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है 0.8 ना, हाँ ठीक है, ओके 0.8। सो बस ये 0.8 और प्लस दिस 5 जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, यहाँ से आने का 5 यूनिट ऑफ टाइम लग गया और यहाँ से यहाँ जाने का 0.8 लग गया, तो योर आंसर विल बी 5.8। लाइक एकदम बेसिक मैथमेटिक्स वाला इम्प्लीमेंटेशन ये। तो ये आ रहे हैं समझ में सबको? ठीक है, बढ़िया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से कि अच्छा रुको एक और एग्जांपल लेकर ड्राई रन करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, बेटर क्लियरिटी हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। अगर 12th में रहते तो इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता था कि ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, एकदम बेसिक है। ठीक है, मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि d = 12 के लिए नहीं, अब मेरे को बता दो तुम d = इसके बीच में, मान लो 15 से आगे, मान लो लेट्स से 20, ठीक है 20 में
तो सबसे पहले तुमको मान लो डी को 20 है, तो तुम ये तो श्योर हो ना कि यार 15 तक आने के लिए मेरे को 7 तो लगा ही होगा कम से कम टाइम। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम है वो 7 आ गया, ठीक है। अब 15 के आगे तुम लोगों को कितना जाना है, 20, मतलब 15 के आगे मतलब टोटल 20 जाने 0 से लेकर के यहाँ तक, तो 15 के आगे कितना, वो डेट विल बी इक्वल टू 5। दैट मीन्स कि 15 और 25 के बीच में तुमको केवल 5 डिस्टेंस ट्रैवल करें, तो मान लो ये 5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आना है तुमको। अब जैसे ये देखो कि इसके आगे वाला 25 है और 25 से 15, दैट मीन्स कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चेक पॉइंट्स आर 10 एंड the time taken to travel them is 12 minus 7, that will equal to 5. Okay, so 10 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 5 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, तो एक यूनिट के लिए कितना लगा होगा, लाइक यू से 5/10, ठीक है। अब तुमको यहाँ से यहाँ कितना यूनिट ट्रैवल करना था, इट्स जस्ट 15 minus 12, दैट मीन्स 5, जस्ट 5/10 into 5, और ये आ जाएगा तुम्हारा एकदम सुंदर सुशील 2.5। दैट मीन्स कि तुमको 2.5 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रैवल करने में, ठीक है। और तुम 7 ऑलरेडी ट्रैवल करके आ चुके हो गए यहाँ तक, तो 7 + 2.5 एंड योर आंसर विल बी 9.5। यहाँ देखो इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब सिंस ये C++ है या फिर ऐसा कर लो, तो तुमको यहाँ पे बताना पड़ता है कि इंटीजर वैल्यू में ना, तो इसमें क्या करना है तुमको, इसमें आई थिंक इसको फ्लोर कहते हैं ना, फ्लोर डिवीजन करना है कि 9.5 आ जाए तब भी 9 कर दो, और 9 ठीक है, हमारा तुम्हारा 9 भी आ रहा है, तो भी ये तुम्हारा 9 में ही कन्वर्ट होगा, लाइक बेस वैल्यू पे जाना चाहिए इसका हमेशा, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन तुम लोग खुद से ट्राई करना है क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन में तुम्हारे यहाँ पे 2 कैच आते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब जो इस एरे की जो लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इसने बोला हुआ है कि 1 से बढ़ा हुआ कितने भी चेक पॉइंट्स आ सकते हैं ना, तो इसमें एक दिक्कत ये है कि मान लो बस 20 है, तो यू जस्ट नीड टू फाइंड द मिनिमम चेक पॉइंट डिस्टेंस जो इससे जस्ट छोटा हो ना, लाइक 20 मैंने दे दिया, तो तुमको 20 के लिए 15 पता होना चाहिए ना। तो अगर तुम इसको ऐसे लीनियर फैशन में सर्च करने जाओगे तो तुम लोग को टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक जो n है वो 10 के पावर 9 तक जा सकता है ना, तो ऐसे लीनियर सर्च करने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी ना। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा, तो बाइनरी सर्च से तुम लोग आइदर निकाल लो, एल्स केस में C++ में तुम्हारे पास एक फंक्शन रहता है अपर बाउंड और लोअर बाउंड ना, वो भी बाइनरी सर्च पे वर्क करता है। लाइक अपर बाउंड क्या करता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एरे है 1 2 3 5, ठीक है, मैं तुमसे बोलूँगा कि लोअर बाउंड निकाल के लाओ 3 का, तो ये पॉइंट कर देगा यहाँ तक। मतलब लोअर बाउंड ऐसा होता है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू पे हो ना, और अपर बाउंड में केवल ये ग्रेटर देन आता है, तो अपर बाउंड तुमको ये देगा और लोअर बाउंड 3 तुमको ये देगा। अच्छा, लोअर बाउंड और अपर बाउंड तो तुम लोग को पता होगा ना अभी तक, लाइक बेसिक STL तो आती ही होगी। कितनों को पता है, एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ बोलो आकाश। अच्छा गलती से हो गई, ठीक है चलो कोई। तो जस्ट लोअर बाउंड और अपर बाउंड फंक्शन का यूज़ करके तुम लोग वैसे मान लो कि तुम्हारे पास इसी में दे दे लाइक 2 है, तो 2 का लोअर बाउंड क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लाइक एटलीस्ट 2 आना चाहिए ना। तो लोअर बाउंड तुमको रिटर्न कर देगा इसका इंडेक्स या फिर इसके एक पॉइंटर रिटर्न करेगा, फिर जैसे तुम उसको माइनस कर दोगे स्टार्टिंग पॉइंटर से तो तुमको यहाँ का इंडेक्स पता चल जाएगा, ठीक है। और लोअर बाउंड ऑफ अपर बाउंड ऑफ 2 क्या तुम्हारा रिटर्न करेगा, यहाँ 3 कर देगा ना। तो इसमें तुम लोग को लोअर बाउंड और अपर बाउंड यूज़ करना पड़ेगा ताकि तुम लोग इस गिवन डिस्टेंस का एक ऐसा पॉइंट निकाल सको जो तुम्हारे रेलेवेंट हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सबसे पहले तो एकदम बेस केस पे आ जाओ कि लाइक तुमको मान लो कोई ऐसा डिस्टेंस दे दिया जो एकदम n के बराबर ही है, तो इस केस में तुम डायरेक्ट इसको आउटपुट कर दो। अगर 0 दे दिया है तो डायरेक्ट 0 को आउटपुट कर दो, एल्स केस में तुम डायरेक्ट इसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड को यूज़ करके आइदर ये निकाल लो क्योंकि तुम अगर तुमने ये निकाल लिया तो तुम इसको आराम से एक्सेस कर सकते हो बाई इंडेक्स +1 ना, और अगर तुमने ये निकाल लिया तो तुम इसको एक्सेस कर सकते हो बाई इंडेक्स -1। तो दोनों ही केस में सही है, और बेसिकली बस तुमको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तुमको गिवन डिस्टेंस d का एक ऐसा यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना है जो इसके सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हो, एंड देन उसके बाद तुम्हारा एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो अभी तुम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है पता चल जाएगा माइनस करके, और टाइम कितना लगेगा वो भी पता चल जाएगा माइनस करके। और बस जस्ट यहाँ पे बेसिक यूनिटरी मेथड की 10 डिस्टेंस के लिए 5 लगा तो एक के लिए 5/10 लगेगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस भी तुम निकालोगे, लाइक ये जो डी दिया हुआ डी -15 या फिर जो यहाँ पे रहेगा वैल्यू ना, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे और तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। इसको ऐड कर दोगे तुम इसके साथ तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। लाइक बेसिकली ये पूरा अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम है कि तुमको एक केस सिनेरियो दिया होगा और तुमको उसमें बस इम्प्लीमेंट करना है जो तुम ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, इसमें किसी को और कोई डाउट? कोड तुम लोग खुद से ट्राई करना इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि कुछ दिक्कतें आ सकती हैं उसमें फ्लोटिंग पॉइंट एंड ऑल में, तो उसको तुम लोग खुद से फिगर आउट करो, अच्छा रहेगा। बाकी कोड चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगा बाद में, बट अभी के लिए नहीं है। तो अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या है कैसे करना है? कितनों को नहीं समझ में आया? कोई है ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो क्वेश्चन? क्वेश्चन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या करना है, और बेसिक बस फिजिक्स जो पढ़े हो गए 11-12 की वही है, उसके बाद कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो आई गेस यू कैन मूव अहेड। ठीक है, ओके। मेरा स्क्रीन विजिबल है? एक बार रिएक्शन दे दो। ठीक है, तो फिर लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर एफ। थोड़ा बहुत तुमको सॉलिड स्टेट का लग सकता है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग सकता है तुमको थोड़ा बहुत। गिवन एन इंटीजर r, फाइंड द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स दैट हैव ए यूक्लिडियन डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 greater than or equal to r but strictly less than r+1। ओके, तो बेसिकली बोला है कि लैटिस पॉइंट इज अ पॉइंट विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, द यूक्लिडियन डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 0 टू पॉइंट x y इज रूट, तो पता है √x² + y²। तो बेसिकली हम लोग को गिवन है कि लाइक हम लोग को बेसिकली गिवन है कि लाइक हम लोग को बेसिकली एक r गिवन है बेसिकली इंटीजर, और हम लोग को बोलना है कि जो बेसिकली नंबर ऑफ पॉइंट्स बोलने हैं जो बेसिकली लाई करते हैं बिटवीन r एंड r+1 बट मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेस देन r+1। तो बेसिकली मैं थोड़ा विजुअली दिखाऊं इसको, तो लाइक ये मेरा x y कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा ये कोई भी रैंडम पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा r डिस्टेंस में है जो मेरा ओरिजिन है इससे 0,0 से, ठीक है, और मेरा ये r+1 है, और ये वाला पॉइंट मेरा r+1 डिस्टेंस में है मेरा क्या बोलते हैं ओरिजिन से। तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, r+1 से ये r+1 डिस्टेंस में है फ्रॉम माई ओरिजिन। ओके, सो तुमको दिख रहा है कि अगर कोई पॉइंट तुम्हारा हमेशा r डिस्टेंस में रह रहा है तो श्योरली सर्कल बनेगा ना वो, विद रिस्पेक्ट टू द क्या बोलते हैं ओरिजिन। आई थिंक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि अगर तुम्हारा कोई कांस्टेंट डिस्टेंस में है पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन तो श्योरली वो सर्कल बनेगा। तो बेसिकली r डिस्टेंस का एक सर्कल बना सकते हो ना मैं बेसिकली, तो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद कर लो। उसके बाद सिमिलरली फॉर r+1 भी एक सर्कल बन जाएगा, यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा श्योरली। और मुझे क्या निकालना है, मुझे ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल टू r है, मतलब वो बड़े होंगे इससे और या फिर इक्वल होंगे, लेकिन वो स्ट्रिक्टली लेस होंगे r+1 से। मीन्स दैट वो जो मेरा r+1 है, मतलब ये इसमें लाई नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होगा, लेकिन मतलब जो r और r+1 के बिटवीन लाई कर रहा है, r+1 में नहीं लाई कर रहा और r में लाई कर रहा है। आई थिंक क्लियर। जो ये रीजन में सारे पॉइंट्स है मेरे, मुझे उनका काउंट निकालना है बेसिकली, सिंपल भाषा में बोले तो। ठीक है, फिर देखते हैं, मतलब इंट्यूशन का बात करें तो लाइक उतना इजीली मे बी जिन्होंने ज़्यादा नहीं किया मे बी उतना इजीली इंट्यूशन ना आए। यहाँ पे बाइनरी लिखा हुआ है, ब्रूट फोर्स से भी मैं तो ब्रूट फोर्स से किया था। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे तुमको बोला गया कि 1 है अगर, तो आंसर 8 आ रहा है, ठीक है। तो लाइक अगर तुम्हारा 1 डिस्टेंस में है तो देखो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे ये वाला पॉइंट श्योरली 1 डिस्टेंस पे है। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा 1,1 है, ठीक है। 1,1 मतलब क्या है, इसका डिस्टेंस कितना होगा, √1² + 1², दिस √2 श्योरली। इसका मतलब ये वाला पॉइंट तुम्हारा ओरिजिन से √2 डिस्टेंस में है।
और ये वाला पॉइंट 1 डिस्टेंस पे है, और रूट टू ये तो पता ही होगा ना कि क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा रूट टू होता है वो 1.4 होता है, और वो लेस देन 2 होगा श्योरली। तो श्योरली ये हमारा आंसर में हम लोग कंसिडर करेंगे इसको। तो इसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। तो देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 पॉसिबल आंसर्स है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ गया। सिमिलरली तुम 2 के लिए देखोगे कि 2 के लिए तुम्हारा 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब सिमिलरली। लेकिन 3 के लिए जो देखोगे ना, बेसिकली तुमको मे बी तुमको पैटर्न दिख रहा था कि एक यहाँ पे 2 और 2 है, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल लगा यहाँ पे रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है। तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 4 8, रूट 8 होगा ना ये। और मेरा यहाँ पे 2 से बड़ा क्या होता है? 2 प्लस 1 3 होता है श्योरली, और 3 तुम्हारा रूट 9 है। तो श्योरली तुम्हारा रूट 9 बड़ा है रूट 8 से, तो तुम्हारा श्योरली ये पॉइंट तो वैलिड है। लेकिन जब तुम यहाँ पे जाओगे 3 में जाओगे ना, बेसिकली जब तुम 3 के लिए जाओगे, मतलब जब तुम्हारा आर का वैल्यू 3 होगा, तब तुम क्या देख रहे हो? जब तुम्हारा आर का वैल्यू 3 हो रहा है, तब अगर तुम ये सारे पॉइंट तो श्योरली करेंगे, तुम थोड़ा देख लेना, मतलब रूट रूट करके रूट ओवर 1 क्या बोलते हैं 1 2, मतलब वाई का वैल्यू वेरी कर रहा है, एक्स का वैल्यू वेरी कर रहा है, सारे पॉइंट हो रहे हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट तुम्हारा नहीं करने वाला, क्योंकि रूट ओवर 9 प्लस 9 18 होता है तुम्हारा, और रूट 18 होगा यहाँ पे, वो बड़ा होगा तुम्हारा 4 से, रूट 16 से। तो इसलिए तुम्हारा ये वाला पॉइंट नहीं कर रहा। तुमको तो बहुत सिमेट्री दिख रहा होगा, तो सिमेट्री है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि सारे, मतलब तुमको स्क्वायर बनेगा तो तुम ऐसा दिमाग में आ सकते हैं कि सारा सारा स्क्वायर मतलब हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, फिर और एक ऑब्जर्व, और सिमेट्री का बात कर रहा था, तो सिमेट्री बोल देता हूँ। अगर तुम एक कोऑर्डिनेट के लिए तुम आंसर निकाल लो ना, तुम चारों के लिए काम कर लोगे। सिंपल बात है, क्योंकि क्या बोलते हैं, तुम देखोगे सिमेट्रिकल है कि तुम्हारा अगर ये कोऑर्डिनेट में जो आंसर आएगा ना, तुम्हारा सेम आंसर उसमें आएगा, सेम आंसर इसमें आएगा, सेम आंसर इसमें आएगा। तो तुम्हारा चारों कोऑर्डिनेट में आंसर तुम इंटू 4 करके तुम आंसर कर सकते हो। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ सब एक ही कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो लेट्स सी द इंट्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है मेरे, बेसिकली जो आर रेडियस का है और एक r+1 का है। तो मेरे मतलब ओके, आर का और r+1 का श्योरली। तो बेसिकली मेरे दिमाग में ये आया, व्हाई नॉट मैं जितना भी r+1 तक का है, जो भी मेरा मतलब पॉइंट्स है जो r+1 से छोटे हैं, वो सारे निकाल लो पहले मैं। व्हाई नॉट, मे बी वी कैन डू इट। हम निकाल सकते श्योरली कि जितने भी पॉइंट्स मेरे r+1 से छोटे हैं, 0 से r+1 के बीच में लाई करते। तो पहला मेरा रहेगा कि लाइक 0 से r+1 के बीच में निकाल लेते। देन उसके बाद अगर मैं वो भी निकाल लूँ, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे गिवन है मेरे को कि लाइक दिस इज r+1 एंड जितने भी पॉइंट्स है मेरा 0 से r+1 तक लाई कर रहा है, वो निकाल लूँ। और उसके बाद जो मेरा r से भी बड़ा या इक्वल है, बेसिकली ये होगा कि लाइक मेरे मैं जो मेरा सारा r+1 जो मेरा है, बेसिकली r+1 वाले जो पॉइंट्स है मेरे, और यहाँ पे जो r वाले पॉइंट्स है, उन जो मेरे बीच में पॉइंट्स मुझे वही चाहिए ना। तो उनको निकालने के लिए मैं पहले सारे वो पॉइंट्स निकाल देता हूँ जो मेरे मतलब r+1 से छोटे हैं। उसके बाद मैं उनसे माइनस कर देता हूँ सारे पॉइंट्स जो मेरे इससे मतलब बेसिकली यहाँ तक का है, यहाँ पे लाई कर रहा है मतलब r रेडियस में। तो सिंपल अप्रोच है। किसी को डाउट है कुछ अभी तक? फिर हैंड रेस कर दोगे, क्लियर है तो ठीक। तो आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब लेट्स सी हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, लाइक हाउ टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट। तो लाइक देखो, अगर मेरा x है ना, x का मेरा मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 श्योरली। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि x का मेरा मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है ना। यहाँ पे मेरा x है और x मेरा 0 यहाँ पे है श्योरली। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? इज इट x इक्वल टू r? क्या मैं x इक्वल टू r+1 ले सकता हूँ क्या? क्या मैं कभी कभी भी x इक्वल टू मतलब y मेरा कुछ भी हो, क्या मैं x इक्वल टू r+1 में कभी जा सकता हूँ क्या? कोई कुछ बोलना चाहेगा कुछ?
आयुष सिंह नो, थोड़ा बोलो, मतलब एक्सप्लेन करो व्हाई नो। R+1 जब भी रूट के अंदर रखेंगे वो वैल्यू एक्सीड हो जाएगा R+1 से, मतलब हाँ किसी का वैल्यू। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो बेसिकली आयुष क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूंगा ना, बेसिकली अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया तो व्हाट इज माई एक्स एक्स, अगर मैं एक्स इक्वल टू R+1 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, R+1 होल स्क्वायर। और अगर मैं क्या बोलते हैं वाई को जीरो ले लेता हूँ, मतलब मिनिमम केस, एकदम मिनिमम, उससे ज्यादा नहीं, एकदम एकदम मिनिमम, बियर मिनिमम जीरो ले लेता हूँ, तो ये मेरा R+1 हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या बोला गया था क्वेश्चन में पहले, इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेस देन R+1, तो यहाँ पे तो इक्वल हो गया, तो इसका मतलब श्योर है कि मेरा एक्स का रेंज जीरो टू आर तक के बीच में ही है। ये तो आई थिंक क्लियर है सबको। तो वाई नॉट मैं एक्स इक्वल टू जीरो टू आर तक करता रहूं, और वाई में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँ कि वाई मेरा क्या हो सकता है, थोड़ा वाई के लिए सर्च करूँ। तो आई थिंक यहाँ पे बाइनरी सर्च भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब बेसिकली वो तो दिख ही रहा है, मतलब श्योरली दिख रहा है, उससे भी इजी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है बाइनरी सर्च। बेसिकली बाइनरी सर्च मतलब बोल रहा हूँ, थोड़ा इंट्यूशन बोल रहा हूँ बाइनरी सर्च का। देखो, तुम्हारा एक्स इक्वल टू जीरो टू आर है, तुमको पता है कि ये मेरा थोड़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है श्योरली, ये तो पता ही है तुमको। अगर मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू श्योरली लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं क्या बोलते हैं वाई का वैल्यू देखो कि वाई का वैल्यू का रेंज क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बेसिकली सर्च करूँ कि मतलब बेसिकली मेरा वाई कहाँ तक लाई कर सकता है, तो लाइक देन आई कैन से लाइक, मतलब अगर मैं देखूँ कि वाई मतलब बेसिकली बाइनरीज देखो, मतलब बेसिकली यहाँ पे श्योरली ऐसा बन रहा है ना कि इसकी एक पॉइंट तक मेरा ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, बेसिकली मोनोटोनिक दिख रहा है ना तुमको, और एक साइड में तुम्हारा फॉल्स आने वाला है। बेसिकली तुम्हारा वाई के वैल्यू ज्यादा बड़ा हो गया तो श्योरली क्या होगा, श्योरली तुम्हारा वो मतलब R+1 से बड़ा चला जाएगा, एक्स का कुछ भी वैल्यू हो। और अगर तुम्हारा क्या बोलते एक पॉइंट आएगा फॉल्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जीरो से नीचे चला गया, तो श्योरली वो तो मैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा हूँ सिर्फ, तो वो तो श्योरली मेरे डिजायरेबल नहीं है, तो एक तरफ फॉल्स आएगा एक तरफ ट्रू आएगा। तो इस ये मेरा बाइनरी का इंट्यूशन है। वो बाइनरी वाला तुम थोड़ा बहुत मतलब कुछ सिंप्लीमेंट कर लेना, मतलब इजी है बहुत, उतना हार्ड नहीं है बाइनरी वाला। तो लेट्स सी, मतलब जो मैं कहना चाहता था, यहाँ पे तुमको एक आर साइज का तुमको गिवन है सर्कल, और यहाँ पे तुमको R+1 साइज का तुमको एक सर्कल गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम अगर सारे ट्रेवल्स कर लो एक्स इज इक्वल टू जीरो टू आर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू आर सारे पॉइंट्स को ट्रेवल्स कर लो, और तुम इनिशियली वाई का वैल्यू रख दो आर, क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम वही है, वाई का वैल्यू तुम्हारा आर से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये भी श्योर है ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू अगर आर से ज्यादा नहीं हो सकता तो श्योरली वाई का भी अपर लिमिट आ रही है, आर से ऊपर तो नहीं जा सकता। R+1 होगा तो फिर से वही रूट ओवर आर स्क्वायर R+1 होल स्क्वायर वाला केस आ जाएगा, और फिर से तुम्हारा R+1 की इक्वल हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए मुझे श्योरली। तो मेरे वाई का अपर लिमिट आर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब बेसिकली मैं एक वाइल लूप चला सकता हूँ, या फिर मतलब बेसिकली मुझे ये चेक करना है कि लाइक जो मेरा ये वाला पॉइंट है, सॉरी ये वाला पॉइंट है, उससे छोटा हो, ठीक है, इससे छोटा होना चाहिए। तो बेसिकली मैं एक वाई स्क्वायर देख सकता हूँ, या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कि लाइक एक ऐसा आर निकालू कि एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारा जो वाई स्क्वायर को एक टेम्पररी वाई स्क्वायर है तुम्हारा, मतलब वाई का वैल्यू वेरिएबल है बेसिकली, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करूंगा मैं अभी। अगर मेरा मतलब बेसिकली मैं अपर लिमिट से स्टार्ट करूंगा आर के, ठीक है, बेसिकली मेरा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर है। उसके बाद मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा और दिखूंगा कि लाइक वो मेरा इस जो मेरा R+1 है, मेरा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है मेरा, ये वाला पार्ट, क्या ये वाला पार्ट मेरा R+1 के होल स्क्वायर से छोटा है नहीं। अगर नहीं है तो फिर तुम y को डिक्रीमेंट करो श्योरली, पर बार क्योंकि तुम्हारा बेसिकली श्योरली वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा R+1 से बड़ा जा रहा है या फिर इक्वल जा रहा है, तुमको लेस देन चाहिए इसके, तो तुम्हें श्योरली बार डिक्रीमेंट करते रहोगे y को तुम। और जब तुम्हारा उस पॉइंट में आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट, इट श्योरली मीन्स दैट कि तुमको ऐसा पॉइंट, ऐसा मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट मिल गया जो तुम्हारा y से छोटा है, सॉरी तुम्हारा R+1 से छोटा है, तुमको मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट मतलब एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। तुमको ऐसा 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 एक पॉइंट मिल गया, उसके बाद तुमको क्या करना है, उसके बाद तुमको
देख तुमको बेसिकली y को ऐसे एडजस्ट करना है क्या y करना, y के ऊपर नहीं है, ऊपर ब्राइटनेस हाँ हाँ थोड़ा सा इसको 25% कर लेना, ठीक है। पीयूष कुछ बोला तुमने? पीयूष टाइम कितना हो रहा है? ओके जल्दी से हो गया होगा। ओके सो लेट्स सी, तो मैं y को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार। नाउ लेट्स सी, थोड़ा बहुत ये पार्ट देखना, मतलब इजी पार्ट है, थोड़ा मतलब बड़ा क्वेश्चन है, मे बी तुमको मे बी थोड़ा जोन आउट हो जाओ। तो ये वाला पार्ट मैंने इंश्योर कर लिया कि मेरा y माइनस में करते जा रहा हूँ बार बार, और तो मुझे ऐसा मतलब मैक्सिमम नहीं, मतलब ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जो जस्ट मेरे r+1 के मतलब नीचे पहुंच रहा है फॉर दैट x, मैं x को ट्रेवर्स कर रहा हूँ फॉर दैट x। नाउ what is that, what I want now, basically what I can do is that मुझे ऐसा एक पॉइंट चाहिए जो मेरा r जो है ना, r से बेसिकली मेरा x² + y², अब मेरा बेसिकली होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू, राइट, क्योंकि उससे छोटा वाला पॉइंट तो मुझे नहीं चाहिए श्योरली। अगर उससे छोटा वाला पॉइंट मैं निकाल लूंगा तो मतलब कोई मतलब जरूरत नहीं है इसका, मुझे बीच वाले पॉइंट से सारे। तो x² + y² ग्रेटर देन इक्वल टू r, और y मेरा अभी मैक्सिमम लिमिट में है जो मेरा r+1 से छोटा है, जस्ट r+1 से मतलब r+1 मतलब बेसिकली जो मतलब मेरा बियर मतलब लिमिट है, अपर लिमिट है उसमें है। तो अब जितने भी मेरे पॉइंट्स है जो मेरे मैं फिर से एक वाइल लूप चलाऊंगा जो मेरा चेक करेगा कि मतलब बेसिकली वो मेरा ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा ही नहीं कर रहा। अगर कर रहा है देन वेल एंड गुड, तुम्हारा आंसर प्लस प्लस हो रहा है, मतलब तुम्हारा श्योरली वो पॉइंट तुम्हारे डिजायरेबल आंसर में है, और तुम उसके बाद y को डिक्रीमेंट कर देना एज यूजुअल, उसके बाद फिर से देखना, और जब तुम्हारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब श्योरली तुम्हारा मतलब वो मतलब बेसिकली क्या बोले, तुम्हारा मतलब तुम इस पॉइंट के मतलब जो तुम्हारा आर है ना, तुम इसके मतलब अंदर आ गए, और ये वाले पॉइंट तुमको नहीं चाहिए, तुमको बीच वाले पॉइंट चाहिए श्योरली। थोड़ा कोड दिखाया तो आई थिंक ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा कोड इंपॉर्टेंट होगा। बाइनरी सर्च वाला भी कोड है मेरे पास, वो मैं बाद में भेजूंगा आई गेस। तो देख लो कोड बेसिकली कि तुम ऐसे लाइक सारे रैप मतलब फॉर लूप है बेसिकली यहाँ पे, और तुम सारे आर के लिए 0 to r सारे तुम सबके लिए r+1 नहीं है बेसिकली, आर के लिए तुम चेक कर रहे हो एक्स का वैल्यू, उसके बाद तुम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे हो, और तुम चेक कर रहे हो कि बार बार कि वो ग्रेटर इक्वल टू है या नहीं तुम्हारे इससे, अगर है तो तुम माइनस करते जा रहे हो। उसके बाद सिमिलरली तुम यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहे हो, उसके बाद उसके बाद तुमको एक अपर लिमिट मिल गया हाइट, जो तुम्हारा हाइट है, तुमको अपर लिमिट हाइट मिल गया, उसके बाद तुम फिर से ये कर लो, लाइक तुम देख लो कि ये तुम्हारा आर से बेसिकली बड़ा है नहीं, और हाइट का वैल्यू भी 0 से ऊपर होना चाहिए, कि हाइट का वैल्यू 0 से नीचे होगा तो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर चला जाएगा, लेकिन मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिर्फ देख रहा हूँ श्योरली। तो हाइट माइनस होगा और आंसर प्लस प्लस होगा, और यहाँ पे मैंने -4 किया है बेसिकली, रीजन ये है कि तुमको बोला गया था कि लाइक पॉइंट्स ऐसे निकालने हैं जो तुम्हारे 0,0 ना हो। बेसिकली देखो मैं बेसिकली अगर मैं 0,0 जो पॉइंट है ना, वो 4 बार मैं बेसिकली उसको कंसिडर कर रहा हूँ, मेरा एक्स का वैल्यू 0 जा रहा है और वाई का वैल्यू 0 मेरा, एक बार तो मेरा फर्स्ट टाइम जो आंसर है उसमें चला गया, और मैं उसको 4 टाइम्स कर रहा हूँ, तो 4 बार मेरा मतलब आंसर आ गया वो, तो मुझे 4 बार डिक्रीमेंट करना पड़ेगा श्योरली उसको। तो आंसर माइनस माइनस कर दिया मैंने इससे, नहीं यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे आंसर इंटू 4 -4 कर दिया मैंने यहाँ पे। थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, मतलब उतना मतलब इजी क्वेश्चन नहीं था, मतलब फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इंट्यूटिव क्वेश्चन था, देख के मतलब तुमको आ जाएगा इंट्यूशन की कैसे करना है, जिसको मैथ्स थोड़ा बहुत अच्छा है उसका, जिसको उसको इंट्यूशन आ जाएगा तो मतलब क्वेश्चन कैसे करना है, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा बहुत है, मतलब जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है उसको ही थोड़ा अच्छे से आएगा आई गेस। किसी को कोई डाउट डाउट पूछना है तो पूछ दो, थोड़ा डाउट तो बनता है इस क्वेश्चन में आई गेस। भैया एक और बार कोड दिखाइए ना। कोड ठीक है। भैया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करके बता सकते हैं? हाँ ठीक है वो, हाँ वो तो बेसिकली देखो, अगर तुम बाइनरी चीज करते हैं ना, बाइनरी चीज करते हैं तो तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा बिग ऑफ आ जाता है, वो तुम्हारा जो लूप था ये वाला बाइनरी चीज मतलब दिखाया था तुमको, यहाँ पे तुम्हारा लूप था तुम्हारा r टाइम्स चल रहा है लूप यहाँ पे, और
क्या बोलते तुम्हारा, उसके बाद तुम बाइनरी करते, तुम्हारा लॉग ऑफ जाता है, तुम्हारा लॉग ऑफ 8 टाइम्स आई गेस, क्योंकि तुम्हारा अपर लिमिट 8 था। तो अगर तुम बाइनरी करते तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आर लॉग आ जाता। लेकिन अगर जैसे मेरा अप्रोच था, उस वाले अप्रोच में बेसिकली की लाइक मैंने बेसिकली क्या मैंने सारे पॉइंट्स को ट्रेवर्स किया जो मेरे यहाँ पे थे, सारे पॉइंट्स। तो बेसिकली मेरा ऊपर वाला बेसिकली सर्कल है, उसका एरिया ये होगा श्योरली, और जो मेरा नीचे वाला है उसका एरिया श्योरली ये होगा। तो तुम इसको कॉमन के ले लो पाई को, और यहाँ पे तुम आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 कर लो, और यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर कर लो, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो पाई इंटू 2r प्लस 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वो बी ऑफ आर में हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला प्रोसेस में। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार रिएक्शन नहीं दो फिर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। और वैसे अगर तुमको कोई डाउट हुआ तो तुम ग्रुप में भी लिख सकते हो, हम लोग रिप्लाई कर देंगे, या फिर पर्सनली भी लिख सकते हो। ओके, एक सेकेंड। हेलो। सो ई वाले क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस नहीं हुई थी ना, और उसका कोड भी मैं दिखा दे रहा हूँ, तो वो भी देख लो। स्क्रीन और वॉइस आ रही है ना सही सही? ओके, अब आ रही होगी। ठीक है, परफेक्ट। सो एक सेकेंड बस। ओके, सो यहाँ पे हम लोग का कोड है, ठीक है। एज आई सेड, एन के और क्यू इनपुट ले लोगे, ठीक है। फिर मैंने कहा ना यहाँ पे लाइक एक सेकेंड को, ठीक है, परफेक्ट। मैंने कहा ना यहाँ पे तुमको के चेक पॉइंट्स दिए रहेंगे, और हर एक चेक पॉइंट में तुमको क्या दिया रहेगा, एक ए आई और एक बी आई ना। सो यहाँ पे तुम्हारा वही आ रहा है, फॉरेंट आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल टू के आई प्लस प्लस सीन ए आई और सीन बी आई, ठीक है। फिर क्यू क्वेरीज है, और हर एक क्वेरी में एक डिस्टेंस दी आएगी, और तुमको उस डिस्टेंस का लोअर बाउंड फाइंड करना है। और सिंस तुम यहाँ पे माइनस ए कर रहे हो, एक सेकेंड, सिंस तुम यहाँ पे माइनस ए कर रहे हो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कि लाइक यहाँ पे तुमको एक इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकली तुमको यहाँ वाले केस में तुमको यहाँ का इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन तुम बस फटाफट एक बार चेक कर लो कि ऐसा हो सकता है कि तुमको जो इंडेक्स मिला है वो डायरेक्ट इसके बराबर, लाइक मैं तुमसे एक सेकेंड को कुछ और करना है, ठीक है। ओके, सो कई बार होता है ना, लाइक तुमको मान लो डिस्टेंस 20 दिया होता है तो अलग केस है। मान लो तुमको डिस्टेंस से 15 दे दिया, तो तुम डायरेक्ट 15 वाला आंसर रिटर्न कर दोगे। एल्स केस में जो p का p-1 है, दैट मीन्स कि तुम्हारा जो इसके पीछे वाला एक जो ये इंडेक्स है, ये इसका जो ये वाला डिस्टेंस है ये प्लस, और जो तुम्हारे b का p-1, दैट मीन्स कि तुम्हारा यहाँ से लेकर के 12-7, दैट मीन्स कि जो तुम्हारा टाइम यहाँ पे लग रहा है वो, और इसको तुम डिवाइड कर दोगे जो d माइनस ए, लाइक नहीं मल्टीप्लाई करोगे इससे, लाइक जो तुम्हारे यहाँ पे डिस्टेंस है, जिससे तुमको जैसे 5 था ना, 5 यूनिट तुमको ट्रैवल करना था, और ये 5/10 फैक्टर है, तो ये जो 5 आया ये इसको माइनस इसको करके आया, और जो 10 था वो तुम्हारा a ऑफ i माइनस a ऑफ i-1, ये a ऑफ p माइनस a ऑफ p-1, और इसका मल्टीप्लाई करो तुम d माइनस a का p माइनस i, दैट मीन्स कि तुम्हारा ये जो तुम्हारा यहाँ वाला डिस्टेंस, ये d माइनस ये वाला इंडेक्स, तो तुमको ये डिस्टेंस पता चलेगी। और तुम्हारा ये वो एक्स्ट्रा टाइम है जो तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कवर करोगे, और ये तुम्हारी बेस वैल्यू हो गई कि लाइक इतना टाइम तो तुमको लगेगा ही लगेगा ये यहाँ वाला, ठीक है। तो बस ये था कोड, और उसके बाद ये तो तुम्हारा लास्ट लाइन पे हैंडल करने वाला, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, लाइक तुम एक टी का लूप चला रहे हो यहाँ पे, और हर एक के अंदर आके एक इनपुट ले रहे हो, क्यों एक लोअर बाउंड है, तो मेनली बस ये लोअर बाउंड ही देखा जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों तो तुम कम नहीं कर सकते ना। तो बस ये लोअर बाउंड की तुम्हारी यहाँ पे लॉग ऑफ के हो जाएगी, क्योंकि जो एरे का साइज होगा वो यहाँ पे इतना है, बट लाइक एट मैक्स तुम के साइज का ही एरे बना रहे होगे ना। तो जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो तुम्हारा टी इंटू क्यू इंटू लॉग ऑफ के हो जाएगी, क्योंकि तुम टी टेस्ट केसेस में क्यू क्वेरीज के लिए लॉग ऑफ के टाइम ले रहे हो, लाइक हर एक क्यू के अंदर तुम एक लोअर बाउंड कॉल करो, उसके बाद इफ एल्स है तो या नॉर्मल रहेगी, और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी तुम्हारा ओ ऑफ के,
क्योंकि तुमको के चेक पॉइंट्स यहाँ पे स्टोर करने हैं ना, ये वाले चेक पॉइंट्स ए आई और बी आई। तो 2 एरे बनेंगे के साइज के, तो तुम्हारे ओ ऑफ 2 के हो जाएगी कि चलो 2 एरे बना लिए। ठीक है, आगे समझ, कोई डाउट नहीं है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस हो गई। ठीक है, वेल एंड गुड, ओके ओके, कंटिन्यू कर लो अताउल्ला। हेलो, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ठीक है, हम जी डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने पढ़ रखा है ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा ब्रीफ कर दे रहे हैं प्रॉब्लम क्या था। तो बेसिकली हमें एक एरे दिया हुआ है और ऐसे कुछ ये है, और उस पर ऑपरेशन यह है कि किसी भी 2 एलिमेंट को सेलेक्ट करके स्वैप कर सकते हैं विद सम कंस्ट्रेंट। जैसे 2 और 1 को सेलेक्ट किए और इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं, यानी 2 की जगह 1 हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा। या फिर 7, 5 या 6 ले लेते हैं, 7 और 6 को लेके इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। और 7 की जगह 6, बेसिकली पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा। इतना क्लियर है? ऑपरेशन क्या है? अब करना क्या है कि इसे हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे में कन्वर्ट करना है। और लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का मतलब एक होता है कि न्यूमेरिक ऑर्डरिंग, कि 10 1 से बड़ा है ऐसा नंबर्स की, और एक होता है डिक्शनरी ऑर्डर। तो जो डिक्शनरी ऑर्डर होता है ना कि ये पहले आएगा, जेड बाद में आएगा, ये होता है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग। और इस सीक्वेंस के केस में अगर कन्वर्ट करना है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट में, तो बेसिकली करना क्या है कि सबसे पहला एलिमेंट को सबसे छोटा करो, फिर सेकंड एलिमेंट ऑपरेशन ऐसे करो कि ये सेकंड एलिमेंट सबसे छोटा हो जाए विदाउट चेंजिंग द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, और फिर वैसे ही थर्ड को छोटा करो विदाउट चेंजिंग फर्स्ट 2। बेसिकली समवट सॉर्ट करना है हमें। तो और हाँ, ऑपरेशन क्या था एक्चुअल में? ऑपरेशन स्वैप कर सकते हैं, और कंस्ट्रेंट ये है कि जो 2 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे उनका बिटवाइज और 4 से स्ट्रिक्टली छोटा होगा। अब चलो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स ये दिख रहा होगा कि अगर सबसे पहले एलिमेंट को सबसे छोटा करना है, तो ये हमारा सबसे पहला एलिमेंट। सब में चेक करते जाओ कि आई मेरा ये है लेफ्ट से, और जे इन तीनों में ट्रेवर्स करो और चेक करो कि ए आई जॉर जिस पोजीशन पे भी हो, जे इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4 और नॉट। अगर रहा तो जिन जिन का है उसमें से सबसे छोटा वैल्यू फाइंड करो और उसको यहाँ पे स्वैप कर दो, और फिर यहाँ से आई यहाँ पे करो सेकंड पोजीशन पे, और फिर जे वैसा ही करते जाओ। ये तो था ब्रूट फोर्स n स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली में अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो इसका हिंट तुम्हारे पास इसमें रहेगा, इस चीज में, ऑपरेशन के कंस्ट्रेंट में। अगर तुम इसको समझोगे तो बेसिकली तुम्हें समझ आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन समझ आया सबको? तो पहले हम लोग देखते कि जॉर होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि ये कंस्ट्रेंट क्या कहना चाह रहा है। अगर इसको समझ गए तो बन गया, प्रॉब्लम ज़्यादा हार्ड था नहीं, मुझे यही समझना था। हाँ चलो ठीक है। तो अगर इसका जॉर लेते हैं हम तो होगा क्या, जो जॉर लेते हैं तो जो दोनों सेम रहता है ना नंबर, तो वहाँ पे 0 हो जाता है। तो इस केस में 0 होगा, और जब अलग होता है तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और चूंकि दोनों सेम है तो फिर ये भी 0 हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो
यहाँ पे देखो 0 तभी होगा जब ऊपर के दोनों सेम होंगे, ये ठीक है। तो एक नंबर लेते हैं और देखते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। ए आईज और ए जे इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4। तो चलो देखते हैं 1 0 1 1 0 1, कुछ ये ले लिए और ये मेरा आई है, जूम करो, ठीक है, ये आई है और जे अभी हम छोड़ देते हैं, जे हमें नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम पता करेंगे कैसा फॉर्म होगा जे का, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है वो होगा लेस देन 4। ए आई और ए जे इज लेस देन 4। तो लेस देन 4 का मतलब क्या है कि वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3। इनका बाइनरी फॉर्म क्या हो जाएगा, एक मिनट। बाइनरी में 0 0 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा 0 1। बाइनरी में 2 को 1 0 लिखेंगे और 3 को 1 1। तो बेसिकली अगर तुम देख रहे होगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट का 2 बिट ही ऑक्यूपाई कर रहा है, ये वाला इतना, और बाकी इधर जितना भी होगा सब 0 0 होगा, इधर सब 0 है। अब सब 0 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग गौर समझे थे अभी कि रिजल्ट में 0 तभी आएगा जब दोनों ऊपर वाला सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 हुआ होगा, यहाँ भी 1, यहाँ 1, तभी दोनों का रिजल्ट यहाँ पे 0 हो सकता है। तो बेसिकली लास्ट का 2 बिट छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 यही रिजल्ट में हो सकते हैं, तो यहाँ पे या तो यहाँ पे 0 0 होगा, या अगर 0 रिजल्ट रहा तो 1 रहा तो 0 1 हो जाएगा इस पोजीशन पे, यहाँ पे 2 रहा तो 1 0 हो जाएगा ऐसा, और 3 रहा तो 1 1 हो जाएगा। तो ये 2 बिट छोड़ के दिख रहा है कि आई और जो जे है, ये जे जो है फर्स्ट 2 बिट छोड़ के सारा बिट सेम है। अगर इतना क्लियर है तो बस हो गया, इतना ही था इसमें। तो ये समझ आया किसी को, क्लियर है? डाउन चलो ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग उन नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं। ए आई और ए जे वैसा होगा जिनका फर्स्ट 2 बिट छोड़ के बाकी सारा बिट सेम है, ए आई और ए जे। तो बेसिकली उन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। तो लेट्स से कि अगर ये और ये इनका फर्स्ट 2 बिट छोड़ के सारा बिट सेम रहा तो इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एरे है 5 2 4 6 और से 1, ठीक है। अब इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 5 का 1 0 1, इसका 1 0, इसका हो जाएगा 1 0 0, इसका 1 1 0 और इसका बेसिकली 1, ठीक है। तो हम 5 से किसको किसको स्वैप कर सकते हैं, फर्स्ट 2 बिट छोड़ के सारा सेम होना चाहिए। तो ये 1 1 मैच कर रहा है फर्स्ट 2 बिट छोड़ के, तो 5 और 4 को स्वैप कर सकते हैं हम लोग। और फिर ये भी, इसका देखो
फर्स्ट 2 बिट छोड़ो, 1 मैच कर रहा है, तो इसको भी हम लोग स्वैप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और इन दोनों का देखो, फर्स्ट 2 बिट छोड़ो, 0 1, इन दोनों को छोड़ के आगे सब 0 0 है, इसका भी आगे सब 0 0 है, तो इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये समवॉट एक ग्रुप जैसा बन रहा है कि ये जो एजेस से कनेक्टेड है, जैसे 5 4 6 इनको आपस में स्वैप कर सकते हैं हम लोग, और 2 1 इनको आपस में स्वैप कर सकते हैं। तो हम लोग 5 4 को भी स्वैप कर सकते हैं, 4 6 को स्वैप कर सकते हैं, 6 5 को रैंडम सब कुछ भी 2 पिक करके स्वैप कर सकते हैं। और स्वैप कर सकते हैं इसका मतलब क्या है कि कोई भी कम्यूटेशन इसका जनरेट कर पाएंगे हम लोग, लाइक कोई भी ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। और हमें करना क्या सा था, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, तो जो सबसे आगे है उसमें सबसे छोटा जाएगा, फिर जो उसके आगे है उसमें सबसे छोटा जाएगा। तो बेसिकली इस ग्रुप में देखो सबसे आगे ये पोजीशन है, तो यहाँ पे सबसे छोटा जाएगा, तो यानी कि यहाँ 4 जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा जाएगा इस पोजीशन पे यहाँ पे 5 जाएगा, और इस पोजीशन पे ये अपनी जगह रहेगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। और जब इन दोनों को स्वैप करेंगे तो इस पोजीशन पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यही है तुम्हारा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट जो तुम कर सकते हो इस इन ऑपरेशंस का यूज करके अंडर दिस कंस्ट्रेंट। इतना ही था। तो अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि इन ग्रुप्स को एरे दिया हुआ रहेगा, तो कौन कौन से नंबर सेम ग्रुप में आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो, और फिर उन ग्रुप के अंदर ही समवॉट इन प्लेस में सॉर्ट करो। तो ये पार्ट कोड से समझाते हैं। एक मिनट, चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनपुट ले लिए, एरे ए बनाए, उसमें इनपुट ले लिए, और हम देखो अब कर क्या रहे हैं, जो ग्रुप्स है ना उनको मैप में स्टोर करा रहे हैं। मैप के अंदर की जो है बेसिकली ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं लास्ट के एलिमेंट्स को यूज करके, कि यहाँ पे जिनका जिनका 1 है उनको एक ग्रुप में डालो, ये मेरा की बना दे रहे हैं, इन सबको एक ग्रुप में डाल दे रहे हैं। और जिनका जिनको यहाँ 0 होगा सबसे आगे, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 0 ही है, ये 0 यहाँ पे 0, तो इनको एज अ की बना के हम लोग एक ही ग्रुप में डाल रहे हैं। तो फर्स्ट 2 बिट हटाओ, ये राइट शिफ्ट कर रहे हैं ताकि शुरू का 2 बिट हट जाए। तो मेरा जो हम जिस बेसिस पे ग्रुप बनाएंगे वो निकल आया, ये इस बेसिस पे ग्रुप बना रहे हैं, और फिर उस ग्रुप में इस नंबर को डाल दे रहे हैं। तो यहाँ तक तो बेसिकली बस ग्रुप ही बना रहे थे। अब अगला है आंसर निकालना। तो अब इस ग्रुप में सबसे छोटा नंबर जो है, क्योंकि हम देखो मेरा ये ग्रुप में मल्टी सेट है, तो मल्टी सेट में हम सारे नंबर डाले हैं, तो मतलब एक ग्रुप वाला सारा नंबर एक साथ रहेगा। जैसे कि जैसे 1 जिसका की था, इस एग्जांपल से ले रहे हैं, तो इसमें 5 5 4 और 6 एक साथ रहेगा, और 0 की में मेरा 2 और 1 रहेगा। और बेसिकली मल्टी सेट तो ये सॉर्टेड वे में ही रहता है, तो ये 4 5 6 ऐसा रहेगा, और इसमें 1 और 2 ऐसा रहेगा, ये कमेंट में दिख रहा होगा। तो इस वे में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ये वाला नंबर, ये वाला एरे। तो अब एक एक करके देख रहे हैं कि सबसे पहला नंबर इस केस में 5 था, और अरे यहीं पे लिख देते हैं, फाइव 2 4 6 1। तो सबसे पहला नंबर है 5, तो 5 जिस ग्रुप में है शिफ्ट किए, यहाँ से पता चल कि कौन से ग्रुप में है, 1 आ गया,
अब 1 का सबसे छोटा नंबर हम निकाल रहे हैं। बेसिकली मल्टी सेट में होता क्या ना, सेट मल्टी सेट इनमें नंबर्स की बेसिस पे सॉर्टेड रहते हैं। तो जो सबसे पहला एलिमेंट रहेगा वो तुम्हारा सबसे छोटा ही रहेगा और सबसे लास्ट वाला जो रहेगा वो सबसे बड़ा एलिमेंट रहेगा। तो सबसे छोटा एलिमेंट निकालें और सबसे पहले उसी को डाल दिए और फिर उसको डिलीट कर दिए। तो 5 यूज़ कर लेने के बाद 5 इस लिस्ट से हटा दिए। उसके बाद नेक्स्ट गया मेरा 2 पे, इसका ग्रुप देखें, ये वाला ग्रुप है, इसमें सबसे छोटा नंबर 1 डालें, इसको डिलीट किए। फिर अगला इसका ग्रुप है ये वाला 4, इसमें से सबसे छोटा। बेसिकली ऐसे ही चल रहा है और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा यहाँ पे n इटरेशंस हो रहे हैं और हर एक इटरेशन में यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है। इंसर्शन का कॉस्ट होता है log n और वो n बार हो रहा है। तो टोटल हो गया n log n यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बिगिन पे एक्सेस करने के लिए तो O1 में हो जाएगा, लेकिन जब इरेज कर रहे हैं तो इरेज करने का कॉस्ट log n हो जाता है और इरेज कर रहे हैं n बार तो n log n, तो यहाँ भी n log n। तो बेसिकली नेट n log n ही हो गया और फिर फाइनली आंसर को प्रिंट कर दे रहा है। बस इतना ही था, ज़्यादा हार्ड था नहीं। मोस्टली समझना ये था कि ये कंस्ट्रेंट क्या कहना चाह रहा है। अगर इतना समझ आ गया तो फिर हो ही जाएगा, ज़्यादा कुछ था नहीं। देखो जो प्रॉब्लम्स जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना, वैसे ये हो गया ना, किसी को डाउट है कोई? अगर ना समझ आया तो पूछ सकते हो। चल ठीक। तो जो हाँ हम बोल रहे थे कि जो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो मोस्टली पता है क्या होता है, या तो तुमको जो हिंट्स वगैरह या कैसे सॉल्व करना है वो सिंपल टेस्ट केसेस पे ही दिखेंगे कि कुछ टेस्ट केस बना लिया खुद से और उस पर देख रहे कि क्या आंसर होना चाहिए, वैसे फिगर आउट करते हैं। या तो फिर ऑपरेशंस वगैरह पे देखो कि ऑपरेशंस क्या कहना चाह रहा है। ऑपरेशंस पे लाइक कंबाइन करके देखो कि 2 बार करके, या जैसे रेंज ऑपरेशन कुछ दे दिया तो फिर कि दोनों ओवरलैप कर सकता है कि नहीं, वैसी चीज़ है। उन सब से ना पता चलता है प्रॉपर्टी ऑपरेशन का कि कैसा होना चाहिए। और समवट अगर तुम फिगर आउट कर लेते हो कि ऑपरेशंस कैसे होने चाहिए, कई बार तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है उसी से। और कई बार होता ही है ना कि लेट्स से कि तुम्हें पता है कि ऑपरेशन कुछ ओवरलैप नहीं कर सकता, तो रेंज ऑपरेशन है, कुछ ऐसा ऐसा लगेगा, तो तुम्हें इंस्टेंटली ऐसा ऐसा कुछ ऑपरेशन लगेगा तो तुम इंस्टेंटली तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ पे डीपी लग रहा है। या फिर मे भी तुम्हें दिख रहा है कि सॉल्यूशंस को तुम 0-1 में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 0 हो गया या 1 हो गया, ये सबसेट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बेसिकली वहाँ पे भी डीपी लग जाएगा, नैपसेक। तो अगर तुम्हें ऑपरेशन थोड़ा बहुत समझ आता है या सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा ये अगर तुम्हें दिख रहा है ना, तो डीपी देखना बहुत आसान हो जाता है फिर वैसे। और थोड़ा एच ब्रीफ कर देते हैं, थोड़ा इसका प्रीरिक्विजिट ज़्यादा लगेगा, ग्राफ लग रहा है इसमें। ओके हाँ, तो चलो देखो इसमें है क्या कि इनपुट में तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया रहेगा 3/n का, ठीक है। और एक तुम्हें एक ऐसा एरे खोजना है, सच दैट कि पहले कैसे रहेगा वो देखो। जैसे ये तुम्हारा एरे है 1 to n, एरे से, और एरे में जो एलिमेंट्स है वो बस -1 और 1 हो सकते हैं। तो इसका तुम्हें कंस्ट्रक्शन एरे के बेसिस पे ये मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होगा वो तुम्हें गिवन रहेगा। तुम्हें बताना है कि क्या एक ऐसा एरे एग्जिस्ट करता है कि अगर इस मैट्रिक्स को
कॉलम वाइज सॉर्ट करे, जैसे 1 -1 1 ऐसा, इस वे में सॉर्ट करे तो मिडल एलिमेंट्स सारे 1 होने चाहिए। ये 1 1 1 दिख रहा है, बोल्ड में दिख रहा होगा, तो इस फॉर्म में आना चाहिए। बस वही बताना था कि अगर ऐसा एरे एग्जिस्ट करता है, इसका कंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि तुम्हें इस एरे के बेसिस पे मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। अब क्या एक ऐसा एरे का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, वैल्यू बस -1 और 1 ऐसा दे सकते हो, ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि सॉर्ट करने पे मिडल में जो वैल्यूज आएंगी, कॉलम वाइज सॉर्ट करोगे, हाँ कॉलम वाइज सॉर्ट करोगे, और जो मिड में जो वैल्यू है 1 1 1 ऐसा आना चाहिए, बोल्ड में दिख रहा है। तो प्रॉब्लम इतना सही है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आंसर यस, नहीं कर रहा तो नो। तो इसको सॉल्व कैसे कर रहा है, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मिड में मेरा 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद भी 1 होगा, यानी कि -1 जो हो सकता है एक रॉ में, -1 या तो बस एक होगा या तो एक भी नहीं होगा। यही तो क्या बोलते हैं, कंडीशन है, या तो एक भी -1 नहीं होगा या एक -1 होगा, 2 -1 होना पॉसिबल नहीं है, फेल हो गया। इतना सही है, चलो बढ़िया। अब इसको हम लोग करते क्या है ना कि असाइन करके देखते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं कि लेट्स से कि मेरा पहला ये वाला -1 है, अगर ये -1 है तो दिस इम्प्लाइज कि ये और ये 1 1 होगा, A1 इम्प्लाइज -A2 इज 1 एंड A1 ओके सॉरी दोनों सेम ही है। अगर यहाँ पे A3 रहता तो वो उसको भी 1 होना होता, पहला इम्प्लीकेशन। दूसरा ये कि मान लो हम इसको -1 कर दे रहे हैं तो इन दोनों को 1 होना पड़ेगा, और अगर फिर इसको कर दे रहे हैं तो इन दोनों को 1 होना पड़ेगा। तो बेसिकली देख रहे हो हर एक रो में तुम इम्प्लीकेशंस बना पा रहे हो कि इसको -1 कर दिया तो इनको ये वैल्यू असाइन होना ही होगा, फिर इसको अगर -1 कर दिया तो इन दोनों को होना ही होगा, या फिर वैसा थर्ड को कर दिया -1 तो ऊपर के दो को 1 1 होना ही होगा, नहीं तो फिर ये तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर तुम्हारा ऐसा इम्प्लीकेशन बन रहा है कि इसको ये वैल्यू देंगे तो बाकी सारे वेरिएबल्स को ये वैल्यू देना पड़ेगा हमको, अगर वैसा केस बन रहा है तो ये प्रॉब्लम बेसिकली टू सेट हो जाता है हमेशा। हाँ, और ये बस 2 नंबर पे काम करेगा कि या तुम यहाँ पे 0 असाइन कर रहे तो इधर 1 1, या 1 असाइन कर रहे हो तो इधर 0 0 वैसा कुछ, लेकिन यहाँ भी 2 ही नंबर है, -1 और 1 ही है, तो -1 को तुम 0 ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। इतना क्लियर है इम्प्लीकेशन वगैरह? कुछ बताओ भाई। चलो ठीक है, तो चलो जल्दी करते हैं। बेसिकली अगर ऐसा इम्प्लीकेशन बना रहे हैं ना तो इसको हम लोग, एक टेक्निक होता है टू सेट, ठीक है, तो टू सेट से सॉल्व कर सकते हैं। चलो दिखाते हैं, ये ब्लॉग ही पढ़ लेना यार, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बताना पड़ेगा इसको बताने के लिए, ठीक है। तो अगर देखो तुम इम्प्लीकेशन ऐसा बना पा रहे हो कि ये ट्रू हुआ तो इसको ट्रू होना पड़ेगा, बी ट्रू हुआ तो ए को ट्रू होना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ हम लोग बना पा रहे थे ऐसा। तो अगर तुम ऐसा बना पा रहे हो ना तो इन इम्प्लीकेशंस को तुम एज अ एज रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफ में, और ये जो वेरिएबल्स हैं उनको नोड्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, और फिर इसमें तुम टू सेट लगा करके तुम फाइंड कर सकते हो कि इनका वैल्यू क्या क्या होगा इन सारे नोड्स का। तो बेसिकली वेरिएबल्स के पे क्या वैल्यू असाइन होगा वो भी तुम फाइंड कर सकते हो। कंपोनेंट कोसराजुस एल्गोरिथम ये सब भी पढ़ना पड़ेगा, तो कर लेना, बस थोड़ा ब्रीफ ही करे थे बस। चलो हो गया।